میں کچھ دیر کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر جب میری ساس کی چنگارتی آواز آئی کہ ارے او بانو، کیا کمرے میں پڑی پڑی مر گئی ہے؟ تو چل جلدی سے دیکھ کے کون ہے، مجال ہے جو کبھی کسی کام کو خود سے کر لیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو اپنی ساس کو باہر صحن میں تخت پر لیٹے دیکھا، جو مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ کدھر تھی تو کل موہی، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی تھی، جا جلدی دیکھ لے اس وقت کون آ گیا ہے۔ مجھے خود عجیب لگا تھا کیونکہ اس وقت تو کوئی نہیں آتا تھا، پھر ایسے اچانک سے دھڑا دھڑ دروازہ کون پیٹ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی احمد کھڑا تھا۔ اس کو اکثر میں نے اپنے شوہر بلال کی دکان پر دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی نظریں جھکا کر سلام کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا احمد، یہاں پر تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ بلال نے کیا تمہیں کسی کام سے بھیجا ہے؟ میں نے یہ اسی لیے پوچھا تھا کیونکہ کئی بار بلال احمد کو کسی چیز کو لینے کے لیے گھر بھیج چکا تھا۔ میری ساس کو تو اس کے آنے پر کافی اعتراض تھا، مگر احمد بلال کا اچھا دوست تھا اور احمد بہت ہی غریب تھا، اس لیے میرا شوہر اس کو روزانہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم سے راضی ہوگا۔ احمد کہنے لگا کہ آپ تھوڑا سا ایک طرف ہو جائیں، بلال آ رہا ہے۔ مجھے اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دی تو ایک دم سے دل گھبرانے لگ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، خوف نے میری حالت خراب کر دی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد علاقے کے کچھ لوگوں کو آتا دیکھ کر میں نے اپنے دوپٹے سے چہرے کو چھپا لیا، مگر جب ان لوگوں کے پیچھے ایمبولینس آ کر رکی تو میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، کیونکہ اس سے وہ لوگ میرے شوہر بلال کو نکال کر اندر گھر میں لانے لگے تھے۔ میری ساس نے جب دیکھا تو چیختی ہوئی اٹھی۔ احمد کا کہنا تھا کہ بلال کو دکان پر ہی دل میں تکلیف ہوئی تو وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر وہاں پر اس کو شدید دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ اپنے شوہر کو اپنے سامنے مردہ حالت میں دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہی تو میرے سر کا سائبان تھا، میرا اس گھر میں واحد سہارا تھا۔ اپنے شوہر کی وجہ سے ہی تو میں اس گھر میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میری زندگی اجیرن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہمارے گھر کا سارا گزر بسر میرے شوہر کے دم سے تھا، وہی کما کر لاتا اور اسی وجہ سے ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے۔ اب جب بلال کو اس دنیا سے گئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تو گھر میں سارا راشن ختم ہو گیا۔ میری ساس نے مجھے غصے سے کہا کہ یہ سب تیری منوسیت کی وجہ سے ہوا ہے، نہ تو میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہوتی اور نہ وہ اس طرح کی موت مرتا، اس کو تو تیری سیاہ بختی مار گئی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بلال کی کریانے کی دکان پر بیٹھنے کو کہا، کیونکہ گھر میں سے کسی نہ کسی کو تو کام کرنا تھا، یہ دکان ہی ہمارا واحد سہارا تھی۔ میں اگر یہ کام کرنے سے انکار کر دیتی تو میری ساس بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے بے دخل کر دیتی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے سر پر گھر کے کام تو تھے ہی، مگر ساتھ دکان پر بیٹھنا بھی اب میری ذمہ داری تھی، جو کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے میرے لیے جان جوکھم کا کام تھا۔ اسی طرح ایک شام میں چھت پر لکڑیوں پر باجرے کی روٹی پکا رہی تھی کہ میری نظر چھت سے نیچے باہر سڑک پر گئی۔ مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ میں ڈر گئی کہ یہ دکان کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا زمین پر بیٹھا تھا۔ میں نے کچھ غور کیا تو وہ احمد تھا۔ میں روٹیاں پکا کر نیچے آئی اور بغیر آواز پیدا کیے باہر گئی۔ اس کو میں نے ایسے نڈھال حالت میں بیٹھے دیکھا تو باجرے کی 3 روٹیاں دے دی، جو وہ لیتے ہی فوراً کھانے لگا۔ اس کو ایسے کھاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ کافی بھوکا تھا۔ میں نے اس کو کئی دن سے نہیں دیکھا تھا۔ آج ایسے روٹی کھاتے دیکھ کر اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ادھر آ جانا، میں تمہیں روزانہ کھانا دے جایا کروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ میں نے بلال سے کئی مرتبہ پوچھا کہ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے کیا؟ وہ دکھنے میں بھی ہمارے علاقے کا نہیں لگتا تھا۔ اس کا غیر معمولی حسن دیکھ کر لگتا کہ جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو۔ بلال ہر دفعہ کہتے کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ پہلے وہ جنگلوں میں اپنی زندگی جیسے تیسے کر کے گزار رہا تھا، مگر وہاں پر اب اس کا کہنا تھا کہ گھنے جنگلات میں کچھ کالی طاقتیں آباد ہو گئی ہیں
जो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। इस वजह से वो इधर से भाग आया, मगर मुझे अब तक उस पर शक हो रहा था कि उसकी हकीकत क्या थी। क्या वो वाकई वहाँ से ही आया था? उसकी आंखों में मुझे आज तक कोई खौफ दिखाई नहीं देता था। वह हर वक्त सुर्ख आंखों को झुका कर रखता। उसके बाद मैं कई लोगों से उन जंगलात के बारे में पूछ चुकी थी। सब कहते हैं कि वहाँ पर उन लोगों ने अजीबोगरीब पुरस्रार आवाज़ें सुन रखी थी। रात के वक्त तो कोई उस रास्ते से गुजरता तक नहीं था, क्योंकि वो सब काले साए वहीं पर भटक रहे होते थे। ये अहमद कई साल से वहाँ रहा था। अगर उसके पीछे वो साए यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए कोई मुसीबत न बन जाती। मैं तो समझी थी कि बिलाल के जाने के बाद शायद वो इस इलाके से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी उससे इतनी बनती नहीं थी। यहाँ पर तो हर कोई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था। सभी बमुश्किल अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे थे। ऐसे में किसी बाहर वाले की कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं तो अपने शोहर की तरह ही बस उसको रोटी दे देती, मगर इस बात की मैंने अपनी सास को भनक भी नहीं लगने दी थी, क्योंकि उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर देना था। मैं दोबारा से घर आई तो मेरी सास कमरे से निकली और मशकूक होकर मुझसे पूछने लगी कि बाहर क्या करने गई थी और ये किसके साथ बात कर रही थी। मैंने घबराते हुए जल्दी से बोला कि कोई नहीं था अम्मा, बस बिल्ली थी उसको भगा रही थी। मगर उनकी शक भरी निगाहें देखकर मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि उनको ज़रा भी इल्म होता तो मेरे लिए मसाइल खड़े हो जाते। मैंने उनके लिए रोटी रखी, खुद कुछ नहीं खाया, क्योंकि अपने हिस्से की रोटी तो मैं अहमद को दे चुकी थी। बर्तन वगैरह धोकर मैं कमरे में सोने चली आई। अब तो थकावट से बुरा हाल हो रहा था। मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि सारे दिन की थकी हारी घर लौटी थी, जिसके बाद अब घर के कामों में लग गई। मगर आज उस गरीब लड़के को भूख से बेहाल देखकर मैं रह नहीं सकी। अब बस सोने ही लगी थी कि मेरी नज़र अपने कमरे में पड़ी एक थाल पर पड़ी, जिस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने घबराते हुए देखा तो मेरा हाल ऐसा था कि काटो तो जिस्म में लहू नहीं, क्योंकि उस थाल में बहुत ही लजीज खाना पड़ा था। उसकी खुशबू सूंघ कर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं शदीद हैरान हुई कि भला ये कहाँ से आई, कौन लाया इसे मेरे कमरे में। मैंने फुर्ती से दरवाज़ा बंद किया कि कहीं उस लजीज खाने की महक मेरी सांस तक ना पहुंच जाए। मैंने अल्लाह का नाम लेकर वो खाना शुरू किया, जो कि बहुत मज़े का था। मैंने ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था। पता नहीं यहाँ पर कौन आया था, क्योंकि मेरा कमरा तो बंद था। उधर तो कोई आया भी नहीं था। अगर कोई आया होता तो मेरी सास की चील से नज़रों से बच नहीं सकता था। मेरा इस दुनिया में ऐसा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया जो मेरे लिए ऐसे खुफिया तौर पर खाना लेकर आया। अब तो मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि कहीं हमारे घर पर कोई पुरस्रार ताकत तो नहीं आ गई थी। मैं उस बारे में सोच रही थी कि कुछ ही देर में मेरे ऊपर गशी तारी होने लगी। मेरा सर भारी हुआ और आंखें खुद ब खुद किसी अनजानी ताकत को देखकर बंद हो रही थी, और फिर देखते ही देखते मैं नींद की वादियों में खोती चली गई। अगली सुबह आँख खुली तो जल्दी से रात वाला वाक़या याद आया। मैंने झटके से बिस्तर के पास रखा थाल को देखा, मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था कि आखिर ये हो क्या रहा था। कौन था जो यहाँ पर होकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अच्छे से याद था कि कल रात मैंने वो लजीज खाना खाया था। ये मेरा कोई ख्वाब या वहम नहीं था। मैंने बाहर किचन में भी हर जगह देख लिया था, लेकिन वो थाल गायब था। ये सब आखिर हो क्या रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले ज़िंदगी दुखों से भरी हुई थी, एक पल का सुख मैसर नहीं था। अभी एक नया खौफ ज़िंदगी में शामिल हो गया था। मेरी सास को इस खुफिया खाने का ज़रा भी इल्म होता तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने में लम्हा नहीं लगाना था। वो तो मेरे मौके की ताक में होती थी कि कब मेरी ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन करना है। उसके बाद मैं बहुत खौफज़दा रहने लगी थी। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द जैसे वहशत छाई रहती कि आखिर कौन सी ताकत थी जो मेरे सामने होकर भी पर्दे के पीछे थी। उसके पास यकीनन बहुत सारी तिलस्माती कुव्वतें थी, जो कि इंसान अगर देख ले तो खौफ से कांप उठे। मेरा नाम बानो है। मैं अपने वालिदैन की चौथे नंबर की सबसे छोटी बेटी थी। मेरे पैदा होने पर किसी को ज़रा खुशी नहीं हुई थी, उल्टा घर में सोग मनाया गया। अब्बा ने तो अम्मा को खूब बातें सुनाई कि मुझे एक बेटा आज तक नहीं दे सकी, बस बेटियों की लाइन लगा रखी है।
کاش وقت رہتے دوسری عورت سے شادی کی ہوتی تو آج میرا ایک بیٹا ہوتا جو میرا سہارا بنتا، میرے بڑھاپے میں کام آتا، مگر تو نے میرے سر پر بیٹیوں کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ میں خود کا پیٹ بھروں کہ ان کے غم دیکھوں۔ ابا کو بس اپنی پڑی رہتی تھی، مجال تھی جو ہمارے بارے میں بھول کر بھی کچھ سوچا ہو۔ ان کے لیے اپنی ذات اہم تھے۔ میری بڑی تینوں بہنوں کی شادی انہوں نے جن گھروں میں کی تھی ان کے شوہر کوئی کام نہیں کرتے تھے، الٹا میری بہنیں ہی گھر گھر صفائی کر کے ان کو گھر کا خرچہ دے رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر خوب کرتی کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ان کی شادی ہی نہ ہوتی، کیونکہ شادی کے بعد تو شوہر کا فرض ہوتا کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کام کاج کرے اور گھر کو سنبھالے، مگر میری اس گھر میں کسی نے بھی نہیں سنی تھی، کیونکہ اماں ابا دونوں ہی میرے سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ اماں تو ابا کی باتوں کے باعث اس قدر چڑچڑی ہو چکی تھی کہ بات بات پر مجھے باتیں سناتی۔ ان کو بھی یہی لگتا کہ اگر میری جگہ ان کا ایک عدد بیٹا ہو جاتا تو ان کی زندگی کافی بہتر ہوتی۔ ابا ان کی کچھ تو عزت کرتے، یوں بغیر کسی وجہ کے مارتے پیٹتے تو نہیں۔ میں گھر میں اماں کے ہر طرح کے کام کاج کرتی، باہر نکل کر بازار سے سودا سلف لانے کا کام بھی میرا ہی ہوتا، کیونکہ اماں کے جوڑوں میں اکثر درد رہتا۔ میں ان کا ہر کام میں ہاتھ بٹایا کرتی کہ شاید کبھی تو ان کا دل موم ہوگا میرے لیے۔ اس طرح ایک دن میں کریانے کی دکان سے کچھ خرید رہی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو دکاندار کافی مبہوت ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں تھی بھی تو کافی خوبصورت، میری گوری ملائی جیسی رنگت باقی سب بہنوں سے منفرد تھی۔ پھر یہ سب روزانہ ہونے لگا۔ وہ دکاندار میرے سے سامان لیتے وقت پیسے نہیں لیتا، مجھے اس کی نظروں میں اپنے لیے کوئی غلاظت دکھائی نہیں دیتی تھی، ورنہ 18 سال کی عمر میں ہی میں لوگوں کی پہچان کرنا اچھے سے جان گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کون سا آدمی کس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ ویسے بھی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اپنے اوپر اٹھنے والی ہر طرح کی نگاہ سے آگاہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی آبرو کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہوتی ہے۔ ہم غریب لوگوں کے پاس اور تھا ہی کیا اس کے سوا؟ اماں سلائی کڑھائی کر کے چند پیسے کما رہی تھی، جس سے اپنا اور میرا پیٹ 2 وقت کی روٹی سے بھر جاتا۔ ابا تو گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے، ان کو بس اپنی پرواہ تھی، وہ اپنے لیے ہی جیتے۔ کبھی گھر کا چکر لگا بھی لیتے تو اماں اور مجھے تانے مار کر چلے جاتے۔ اگر ہم یوں ہی سسک کر مر بھی جاتے تو ان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑنا تھا۔ پھر ایک روز ہمارے گھروں سے دکاندار کا رشتہ میرے لیے آیا، جس کا نام بلال تھا۔ میں تو بہت خوش ہوئی کہ چلو اب میرا بھی گھر ہوگا، ایک چاہنے والا شوہر ہوگا جو مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ ابا کی طرف سے مجھے ہر آئے دن ذلیل نہیں ہونا پڑے گا اور ایک خوشحال زندگی گزاروں گی۔ اماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں ایک ہفتے میں ہی سادگی کے ساتھ میں بلال کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ لیکن یہاں اگر مجھے پتہ چلا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میری ساس ایک نہایت ہی ظالم عورت تھی، جس کے اکلوتے بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر ایک غریب کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ناراض نہ کرنے کے لیے اس کی بات تو مان گئی، پر اس کا سارا بدلہ اس نے میرے سے لینا شروع کر دیا۔ میرے گھر میں بلال کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کی طلاق ہو چکی تھی اور وہ ابھی بھی ادھر ہی رہ رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے مجھے شادی کے اگلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر تو نے اس گھر میں رہنا ہے تو یہاں کے سب کام چوں چراں کیے بغیر کرنے ہوں گے۔ تو اپنے باپ کے گھر کوئی شہزادی بن کر نہیں رہ رہی تھی جو میرے سامنے نخرے دکھائے گی، اس لیے بستر سے اٹھ اور گھر میں پوچھا لگا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ میں نے اپنے سسرال میں کام کاج کرنے تھے، کیونکہ ہر لڑکی کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں، مگر یہاں تو آتے ہی مجھے تانے سننے کو مل گئے تھے۔ بلال میرا جتنا ہو سکتا ساتھ دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان باتوں کو دل پر مت لو، اماں دل کی صاف ہیں۔ پھر میں نے بھی اچھی بہو ہونے کے ناطے سب کام کرنے شروع کر دیے۔ میری ساس اب ان سب کاموں میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیا کرتی، آج تک کبھی میرے سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ اس میں اس کا ساتھ میری نند خوب بڑھ چڑھ کر دیتی۔ وہ مجھے بلال کے ساتھ خوش باش دیکھ کر جلتی تھی۔ کئی مرتبہ میرے منہ پر کہہ چکی تھی کہ اگر میرا گھر نہیں بس سکا تو میں تیرا بھی نہیں بسنے دوں گی۔
तो क्या समझती है यहाँ पर? ऐश करेगी तू? मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने पहले ही मेरा नाम बदनाम कर देना था। मेरी नंद तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर हर किसी की नज़र में अच्छी बन जाती। हर कोई मुझे ही बातें सुनाने लग जाता। मैंने सब कुछ बस अपने रब पर छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उनकी दुकान पर एक लड़का आता है जो कि काफ़ी गरीब है। उसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि एक वक्त की रोटी खा सके। बिलाल ने उससे कह रखा था कि तुम मेरी दुकान पर मेरे साथ खाना खा लिया करो, अल्लाह रिस्क देने वाला है, वही बरकत भी डालता है। मैं ही रोज़ाना एक डब्बे में दोपहर को गर्मा गर्म दाल रोटी बनाकर दुकान पर छोड़ आती, क्योंकि बिलाल अपनी दुकान किसी के भरोसे नहीं छोड़कर आ सकते थे। बिलाल की करियाने की एक छोटी सी दुकान थी जिससे इतना मुनाफा हो जाता कि हमारे घर का चूल्हा जल जाता। बाकी जितनी बचत होती वो मेरी सास अपने पास रखती। उनका कहना था कि उनके बेटे की कमाई पर बस उनका हक था, क्योंकि ये सब उनकी दुआओं से हुआ था। मुझे हमेशा से इश्तियाक था कि आखिर देखो कौन है जिसके बारे में मेरा शौहर इतना जिक्र करता था। उसका कहना था कि वो सारी उम्र जंगल में गुजारता आया है, फिर वहाँ पर कुछ खौफनाक ताकतें आ गई थीं जिसकी वजह से उसको वहाँ से भागना पड़ा। उस लड़के का नाम अहमद था, जो कि एक हाफिज़ कुरान था। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगती कि एक जंगल में रहने वाले इंसान को कुरान कैसे याद था। वहाँ तो उसके पास कोई भी नहीं था उसको सिखाने के लिए। मैंने सुन रखा था कि जंगलात वगैरह के रहने वाले लोग बस खाना पीना और शिकार करना जानते हैं, उनको बाकी किसी बात का इतना इल्म नहीं होता। तालीम और दीनी पढ़ाई उनके पास इतनी नहीं होती, क्योंकि वो जंगलों और जानवरों को ही अपना सब कुछ समझते हैं। अब जब से ये सुनना था कि वहाँ पर शैतानी ताकतें आबाद हो गई हैं, तो मुझे एक धड़का लग चुका था कि कहीं ये अहमद तो वही नहीं था और किसी खौफनाक साजिश से हमारे इलाके में ना आया हो। मैं एक दिन दुकान पर गई तो बिलाल किसी लड़के से बात कर रहे थे। मैं वहाँ गई तो मेरे शौहर ने उसका तारुफ करवाया था कि ये अहमद है। मैं तो हैरान रह गई उसको देखकर, क्योंकि वो कहीं से भी कोई आम गरीब आदमी नहीं लगता था। उसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे, मगर उसके नकोश देखकर ऐसे महसूस होता जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। बचपन में जितनी भी परियों और शहजादों की कहानियाँ सुन रखी थी, उनमें राजकुमारों जैसी तस्वीर होती, वो हूबहू वैसा ही था, मगर उसकी सुर्ख आँखें काफ़ी पुरस्रार थी। मैंने बस एक नज़र उसे देखा था, उसके बाद अपनी नज़रें दोबारा नहीं उठाई। मैं वो खाने का डब्बा बिलाल को देकर घर आ गई थी। मैं अहमद की खातिर ही अपनी तरफ से बाजरे की 2 रोटियां ज़्यादा बना लिया करती थी, ताकि वो भी पेट भर कर खा सके। मेरी सास को इस बात का पता तो था, मगर वो बिलाल को कई दफ़ा टोक चुकी थी कि तू क्यों इस लड़के को अपनी दुकान पर रखता है। यहाँ हर कोई उससे बात करने से कतराता है। अगर इसने तुझे कोई नुकसान पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँगी। बिलाल अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करते। वो कहते थे कि अम्मा, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो भी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अपने बंदों की मदद करने वालों को पसंद करता है। मेरी सास का अपने बेटे पर बस नहीं चलता तो वो सारे बदले मेरे से लेने लगती। मैं दुकान पर खाना लेकर जाती तो वो मेरे पर तंज करती कि सब जानती हूँ, बस घर से बाहर निकलने के बहाने से तू कामों से जान छुड़वाना चाहती है। तू तो यही चाहती है कि बस सैर सपाटे करती रहे। अरे शरीफ घर की औरतें घर से रोज़ रोज़ बाहर नहीं निकलती, एक तू है जिसके पैर ही घर पर नहीं टिकते। मैंने सास की बातों से तंग आकर बिलाल से कहा कि अगले दिन से बिलाल घर के दरवाजे पर आकर खाना ले जाया करते थे। वो उस वक्त तक अहमद को अपनी दुकान का ख्याल रखने को कहते। मैंने शुक्र का सांस लिया कि चलो अच्छा है, अब तो मेरी सास की हर रोज़ की चिक से जान छूटी। एक दिन मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद खड़ा था और मुझे निगाहें झुकाकर ही कहने लगा कि बिलाल भाई खाना लाने का कह रहे हैं। मैंने पूछा कि वो खुद क्यों नहीं आए, तो उसने कहा कि उनकी दुकान पर काफ़ी रश था, इसलिए वो नहीं आ सकते। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसको खाने का डब्बा दे दिया। जो ही वापस पलटी तो सामने मेरी सास खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि ये किसके साथ तू बात कर रही थी, बोल। मैंने उनको बताया कि अम्मा, बिलाल ने अहमद को खाना लेने के लिए भेजा था, वो खुद किसी काम में मसरूफ़ थे। मेरी सास का इतना सुनना था कि भड़क उठे। उसने खाना लेने के लिए भेजा था
तो तू मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ गप्पे लगाना शुरू हो गई थी। मैंने अम्मा से कहा कि ये अब क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला क्यों उसके साथ गप्पे लगाने जाऊंगी। मगर वो यही कहे जा रही थी कि मैं सब जानती हूँ, तेरे जैसी लड़कियों को ज़रा शोहर घर से बाहर निकाले तो उसके पीछे रंग रंगेलियाँ मनाने लग जाती हैं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि आपको खुदा का वास्ता है मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। मैं जितनी भी गरीब सही मगर इस किस्म का घटिया काम सोच भी नहीं सकती। उसके बाद जब भी अहमद खाना लेने आता मैं बस जल्दी से उसको पकड़ा कर दरवाज़ा बंद कर देती ताकि मेरे किरदार पर किसी को बात करने का मौका ना मिले। यहाँ तो हर कोई जैसे ताक में बैठा होता था कि ज़रा सा मेरे से कोई चूक हो और वो मुझे बिलाल की नज़रों में जलील कर सकें। कुछ दिन से बिलाल की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, उसके जिस्म में दर्द होता। मैं उनसे कहती कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, मगर वो बार बार ये कहकर इनकार करते कि ये बस ऐसे ही थकावट की वजह से है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तो कहती थी कि 1-2 दिन काम से छुट्टी ले लें, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए। और एक दिन की बात है, जब मैं कामों से फारिग होकर कमरे में थोड़ी देर आराम करने गई तो किसी ने दाखिली दरवाजे को धड़ाधड़ पीटा। मैंने उसे अपना वहम समझा और लेटी रही कि अपनी सास के चिल्लाने पर सर पट भागी। सामने देखा तो अहमद खड़ा था। उसने मुझे पर्दा करके एक तरफ होने को बोला। मैं नासमझी से उसकी बात सुनते साइड पर हुई थे कि देखा जब बिलाल को कुछ लोग कंधों पर उठा कर ला रहे थे। उनका कहना था कि बिलाल को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसका इंतकाल हो गया है। मैं तो जैसे जीते जी मर गई थी, क्योंकि बिलाल के होने तक ही मैं अपने ससुराल में टिकी हुई थी। मेरा शौहर मेरे सर का ताज इस दुनिया से गया तो मेरी सास को तो जैसे खुली छूट मिल गई थी। वो उठते बैठते मुझे बिलाल की मौत का जिम्मेदार ठहरा देती कि तुझ जैसी मनहूस लड़की को घर में लाकर मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, तो मेरे बेटे को खा गई। मैं रोती गिड़गिड़ाती कि खुदारा ऐसा ना कहे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। आज तक मुझे किसी ने भी नरम निगाह से देखा तक नहीं था। एक बिलाल ही थे जिनकी बेलौस मोहब्बत पाकर मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब इंसान समझने लगी थी। उनकी वजह से मुझे लगता कि कोई मेरा भी था जो बग़ैर किसी मकसद के मुझे चाहता था, मेरे नाज नखरे उठाता था। मैं शादी के 1 साल ही बस खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकी थी। अब 19 साल की उम्र में ही बेवा बन गए थे। मेरी सास ने मेरे शौहर के मरने के बाद मुझे दुकान पर बैठने के लिए कहा तो मैं तो हैरान रह गई कि वो क्या कह रही थी। मैं लड़की होकर कैसे दुकान चला सकती थी? ये कितनी अजीब बात होती। हर कोई मुझे बुरा भला कहता, मगर उन्होंने धमकी दे रखी थी कि अगर तू दुकान पर नहीं बैठी तो मैं तुझे धक्के देकर घर से निकाल बाहर करूँगी। मेरे पास उस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब्बा तो अब मुझे कभी भी कबूल नहीं करना चाहते थे। शादी होते ही उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे ऊपर हमेशा के लिए बंद कर डाले थे। मैं चारों नाचार दुकान पर चली गई। मुझे सुबह सवेरे ही उठकर अपनी सास और नंद के लिए नाश्ता बनाना था और ख़ुद दुकान पर आ जाती। मुझे उधर आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अब तक मैंने अहमद को एक मर्तबा भी नहीं देखा था। मैं हैरान हुई कि अचानक वो कहाँ गायब हो गया था। उसका तो कोई था भी नहीं। कहीं वो फिर से उस जंगल में तो नहीं चला गया? अगर उसको उन पुरस्रार ताकतों ने वहीं पर कैद कर लिया हुआ था तो मुख्तलिफ ख्यालात मेरे जहन में आते। अब तक मेरी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, मगर घर को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। मेरी सास तो मुझे ये तक गुस्से में कहती कि तू बांझ औरत है। इतना अरसा शादी को हो चुका था, लेकिन अब तक कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाती। औलाद तो रब की अता होती है, वो जिसको चाहे औलाद की नेमत से नवाजे। मैं एक रोज़ छत पर लकड़ियों को जलाकर बाजरे की रोटी पका रही थी कि मेरी नज़र सामने गली में बैठे किसी साए पर पड़ी। मैं घबरा गई और नीचे जाकर देखा तो वो अहमद था, जो काफ़ी बीमार लग रहा था। उसकी जर्द रंगत देखकर मुझे समझ आ गई कि वो कई दिन से भूखा था। मैंने उसको बाजरे की रोटी दी तो वो जल्दी से खाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम रोज़ाना यहीं पर आ जाना, मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। फिर मैं रोज़ाना ही उसको अपनी सास और नंद से नज़रें बचाकर रोटी पकड़ा दिया करती। एक दिन मैं दुकान से घर वापस आ रही थी कि मेरी नज़र अहमद पर पड़ी। वो ज़ख्मी हालत में सड़क के किनारे बैठा था। उस वक्त कोई आसपास मौजूद नहीं था जो उसकी मदद करता। मैं भागती हुई गई और उससे पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ है?
किस ने तुम्हारी ये हालत कर दी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो काफ़ी ज़ख्मी था। उसने सिर्फ इतना बोला कि क्या मैं आप लोगों के घर कुछ दिन के लिए रह सकता हूँ? मैं अगर यहाँ रहा तो वो भयानक ताकतें मुझे मार डालेंगी। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गई थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा। मैं कैसे उस अनजान लड़के को घर में ले जाती? मेरी सास तो पहले ही उसके खिलाफ थी। अगर उनको पता चलता तो वो तो मेरा जीना हराम कर देती। मुझे अपने घर से ही बेदखल करने में लम्हा नहीं लगाती। मैं उसको इनकार करना चाहती थी, मगर न जाने उस लड़के की हालत देखकर मेरे अंदर उसके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। एक अजीब सी कश्मकश थी उसमें। मैं चाह कर भी उसे इनकार नहीं कर सकी। मैंने अहमद को अपने पीछे आने का बोला। उस वक्त तो मेरी सास और नंद कमरे में आराम कर रही थी। मैं उसको छत पर बने स्टोर में ले गई। वो तो अक्सर बंद रहता, वैसे भी वहाँ कोई जाता नहीं था। मेरे अलावा तो कोई छत पर चढ़ता ही नहीं था। सारे कामों के लिए मुझे ही उधर जाना पड़ता था। मैं छत पर कपड़े सुखाने और लकड़ियों पर रोटी पकाने जाती थी। मैंने अहमद को यहाँ खामोशी से रहने का बोला और कहा कि तुम कोई आवाज़ मत निकालना। मैंने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी ताकि उसके ज़ख्मों से खून बहना बंद हो जाए। फिर मैं नीचे आई और उनको खाना वगैरह देकर कमरे में बंद हो गए थे। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि किसी को भी भिनक न लगे कि मैंने ऊपर अहमद को रखा हुआ है। मैंने ये सब बस उसकी मदद करने के लिए किया था। मेरे ऊपर खौफ इस कदर हावी था कि मैंने खुद खाना भी नहीं खाया था। मैं अपने लिए रोटी बनाना ही भूल गई थी। मगर जो ही कमरे में आई तो वहाँ आज फिर से खाने का थाल पड़ा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आखिर कौन लेकर आया था? मैं उस वक्त भी काफ़ी भूख महसूस कर रही थी। अल्लाह का नाम लेती वो मज़ेदार खाना खाने लगी। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कोई तो पुरस्कार ताकत थी जो मेरे लिए थाल लेकर आई थी। मैं खाना खाते ही सोने के लिए लेट गई। अगले दिन उठी तो दुकान पर जाने से पहले एक नज़र ऊपर स्टोर रूम देखने के लिए गई ताकि अहमद का पता कर सकूं कि अब वो कैसा था। मैं अपनी सास के कमरे में जाते ही ऊपर गई और देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर अब कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त वो कहाँ चला गया था? घर का दाखिली दरवाज़ा तो अब तक बंद था। फिर आखिर वो निकला कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे निकल गया। फिर मैं सर झटक कर नीचे आई तो मेरी सास चिल्लाने लगी कि तू ऊपर क्या करने गई थी? अब तक तो तुझे दुकान पर चले जाना चाहिए था। मैंने बहाना बनाया कि ऊपर कुछ कपड़े उतारने गई थी। उसके बाद मैं दुकान पर आ गई। मैं इस इंतज़ार में थी कि अहमद आज दिखाई दे तो उससे साफ साफ पूछूंगी कि आखिर वो कौन था, ऐसे कैसे घर से चला गया। मुझे वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। अब तो ये सोच कर ही मेरा दिल घबरा रहा था कि वो कोई पुरस्कार मखलूक हुआ तो मैं उससे कैसे जान छुड़वा सकूंगी। अक्सर मैंने सुन रखा था कि जिन्नात वगैरह अगर किसी इंसान पर आशिक हो जाएं तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। मेरा तो कोई था भी नहीं इस दुनिया में। पहले तो शोहर का सहारा था जो मेरी ढाल बन जाया करता। अब तो सास ने इस बात का इल्म होती पहली फुर्सत में ही मुझसे जान छुड़वानी थी। फिर कई दिन उसी कश्मकश में गुजर गए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। एक दिन मैं रात सोने के लिए लेटी कि मुझे कुछ खटपट की आवाज़ आई। मैं हैरान हुई कि मेरी सास और नंद तो कब का खाना खाते ही सो चुकी थी। मैं जिस वक्त किचन में बर्तन धोकर आई थी तब तो कोई भी नहीं था। अब मुझे घबराहट हुई तो उठकर बाहर आई। सहन में अंधेरा था। मैं फिर अपना वहम समझकर जाने लगी थी कि मुझे कोई काला साया दिखाई दिया। मैं एकदम से डर गई कि ये कोई चोर तो नहीं था। अगर उसने कुछ चोरी करने की कोशिश की तो मेरी सास ने तो मुझे ही बेइज्जत करना था कि सब तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने डरते हुए आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ पर? तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह घबरा रहा था। अगर उस चोर ने मुझे उल्टा कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं क्या करूँगी? मैं दहान पान सी लड़की थी। आज तक कभी अपनी सास के आगे ज़ुबान तक नहीं चलाई थी। उस हट्टे कट्टे जवान का मुकाबला कैसे करती? अभी मैंने उतना ही बोला था कि वो साया दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ गया। मैंने फुर्ती से उसका पीछा किया और चिल्लाई कि कौन हो तुम? मैं हर सूरत उसका चेहरा देखना चाहती थी मगर वो भाग चुका था। मेरी सांस डर की वजह से उखड़ने लगे थे। अभी मैं इर्द गिर्द देख रही थी कि मेरे बाल किसी की मुट्ठी में आए। वो मेरी सास थी। वो कहने लगी कि बदबख्त, तेरा शोहर क्या मरा, तूने उसकी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। यूँ आधी रात को अपने किस आशिक के साथ बात कर रही थी? बोल, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? तेरे जैसी 2 टके की लड़की को मैं इधर बर्दाश्त नहीं करूँगी।
जो रात की तन्हाई में मुंह काला करके हमारे ख़ानदान का नाम बदनाम करे, सब मेरे ऊपर थूकेंगे। मैं ये सब सुनकर उनके पैरों में बैठ गई और गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांगने लगी कि मेरा यकीन करें, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी आंखों से किसी चोर को इधर से निकलते देखा था, उसके पीछे आई थी। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो मेरी किसी बात को नहीं मान रही थी कि अब तो एक लम्हे के लिए भी तू यहाँ रुकी तो मैं तो तुझे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगी। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखती, ये तो मेरे बेटे की ज़िद थी। मगर अब वो नहीं रहा, तू भी अपनी इद्दत पूरी कर चुकी है। चल निकल मेरे घर से। उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर डाला था। मुझे अपनी फूटी किस्मत पर बहुत रोना आया कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। यहाँ सब मुझे जानते थे। अगर किसी ने ऐसे सड़क पर बैठे देखा तो कितनी सुबकी होती। इसलिए मैं उठी और इस इलाके से काफ़ी दूर चली आई। चलते हुए मुझे समझ ही नहीं आई और मैं सुनसान रास्ते पर आ गई। मुझे होश आया तो खुद को जंगलात के करीब देखकर खौफ आया। यहाँ तो मैं आज से पहले कभी नहीं आई थी। मुझे बहुत डर लगने लगा कि अब कहाँ से वापस जाऊँ। अंधेरे में समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरफ से वापस जाऊँ। मुझे सामने 2 रास्ते दिखाई दिए। मुझे अपने बेघर होने के सदमे में याद ही नहीं रहा कि कौन से रास्ते से चलकर आई थी। अब बस अंदाजे से दाएं तरफ आगे बढ़ी तो काफ़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर तो बस वीरान झाड़ियाँ ही थी, कोई घर वगैरह नहीं थे। अभी मैं वापस जाने के लिए पलटती कि एक दरमियानी उम्र की औरत को खड़ा देखकर घबरा गई। उसने एक मशल पकड़ रखी थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि कौन है तू छोकरी और यहाँ कैसे आ गई? क्या तुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता? मैं उस औरत की बात सुनकर कांपने लगी, क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ था कि मैं अनजाने में गलत रास्ते पर आ गई थी। मैंने उस अजीब सी दिखने वाली औरत से कहा कि माफ़ कर दे, मैं नहीं जानती थी कि इस जगह के बारे में क्या है यहाँ। पहली बार यहाँ से गुजरी तो अंधेरे की वजह से देख नहीं सकी। मैं ये कहकर एक तरफ जाने लगी थी कि उसने पूछा कि तुम इधर से पहले भी कभी नहीं आई हो क्या? ना ही इधर के बारे में जानती हो क्या? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारा घर नहीं है? इतनी रात में इस वीराने में क्यों फिर रही हो? मैंने बस इतना ही बोला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। उस औरत ने मुझे कहा कि मेरे साथ आओ, यहाँ तुम्हारा ऐसे फिरना ख़तरे से खाली नहीं है। मैं भी अकेली ही होती हूँ। मैं उस औरत की बात सुनकर सोच में पड़ गई कि क्या मुझे अनजान खातून के साथ जाना चाहिए। उसने स्याह रंग का लिबास पहना था और आंखों में भी स्याही भरी थी। उसके स्याह बाल कमर पर खुले थे। मैंने दिल में खुद से कहा कि ऐसी जगहों पर तो औरतें अपने बाल बांध कर रखती हैं ताकि कोई अनदेखी मखलूक उनकी दीवानी ना हो। इसके बाल तो थे ही इतने लंबे, उसको किसी बात का खौफ नहीं लगता क्या? उल्टा मुझे उस औरत की स्याह आंखों से घबराहट होने लगी, मगर मैं मजबूर थी, हर हाल में उसकी बात माननी ही थी, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैं सब कुछ रब पर छोड़ती उसके पीछे जाने लगी। वो 15 मिनट चलने के बाद एक पुराने से मकान के आगे रुकी। मुझे दिखने में वो कोई खंडर लगा। वहाँ की टूटी फूटी खिड़कियाँ देखकर मैंने उस औरत से पूछा कि आप इस घर में रहती हैं? वो कहने लगी, अरे तुम घबराओ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, ये मेरा इलाका है। मेरी इजाज़त के बगैर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई जानवर आ गया तो मेरे पास इतनी ताकत है कि उसको चीर फाड़ दूँ। मैं उस औरत की बातों से सख्त खौफजदा थी, लेकिन उस पर जाहिर नहीं होने दिया। वो मुझे अंदर लाई और एक कोने वाला कमरा दिया। मैं खुद भी थक गई थी, आधी रात का वक्त था। चलने की वजह से अब तो ज़रा भी हिम्मत बाकी नहीं थी, इसलिए मैं उस कमरे में बिछी चटाई पर लेटते ही सो गई। मैंने हर तरह का खौफ जहन से निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त आंखें बंद हो रही थी। मैं अंधेरे में झाड़ियों को हटाती आगे बढ़ी। मैं जंगल में चल रही थी, मगर मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह उधर आ गई। मैंने तो हमेशा सुन रखा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर कुछ पुरस्रार ताकतें आबाद हैं। मैं तो रास्ता भटक गई, फिर उसके बाद एक औरत के पास आ गई, जिसके बाद न जाने कैसे इधर पहुँच गई। मैंने चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, कोई है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी मदद करो। मुझे खौफ आने लगा था, क्योंकि अब मुझे कुछ जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। मेरा सांस खुश्क हो गया, क्योंकि यहाँ जंगल में भेड़िए हर जगह फिर रहे थे। उन्होंने इंसानी खून की बू सूंघ ली तो एक सेकंड के अंदर मुझ तक पहुँच जाते। वो मुझे नोच खाते। मैं अंधाधुंध भागने लगी। मेरे पैरों में जगह जगह कांटेदार झाड़ियाँ चुभ रही थी, जिनसे खून रिस रहा था, मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि आज अगर रुक जाती तो अपनी जान की बाजी हार जाती।
मैं उस जंगल में ही मर खप जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि बानो नाम की लड़की यहाँ पर किसी भेड़िए की खुराक बन गई थी। मैं भागती जा रही थी कि मुझे किसी की गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई आदमी था जो कह रहा था कि मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे निकालो इधर से। मैं चौंक गई कि ये आवाज़ तो सुनी सुनाई लग रही है। ऐसे लगता कि जैसे मैं कई बार इस आवाज़ को सुन चुकी थी। मैं तो समझी थी कि यहाँ पर मैं ही मुसीबत में हूँ, मगर मेरे अलावा भी कोई था जो अजियत से चिल्ला रहा था। मुझे हर हालत में उसकी मदद करनी थी। क्या पता उसको किसी खूनख्वार जानवर ने कैद किया हो। मेरे कदम उसी आवाज़ की जानिब गए। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने दरख्त की ओट में छुपकर झांका तो अहमद रस्सियों में जकड़ा ज़मीन पर बैठा चिल्ला रहा था। उसके गिर्द एक स्याह रंग का दायरा बनाया गया था जिससे बाहर वो नहीं आ सकता था। उसके करीब ही एक औरत स्याह रंग के लिबास में बैठी अपने सामने लकड़ियों पर आग लगाकर बैठी थी और मुसलसल कोई मंत्र पढ़ती जा रही थी। उसने जब कहा कि बस अमाउस की रात आने दे, फिर मैं तेरा काम हमेशा के लिए तमाम कर डालूंगी, तेरी सारी ताकतें मेरे पास होंगी। बहुत भाग लिया तूने। अब मेरे इस जादुई अमल से तो इस दायरे से किसी सूरत बाहर नहीं आ सकता। यहाँ से बाहर तुझे बस एक इंसान ही ला सकता है, और इस आसेब ज़दा जंगल में कोई इंसान कदम रखने का सोच भी नहीं सकता। तो बहुत जल्द इस भड़कती आग में जलकर भस्म हो जाएगा। वो खटिया औरत ये कहते ही भयानक कह के लगाने लगी। मेरा हाल तो ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं खौफ से सफ़ेद पड़ती वहाँ से भागी थी कि मेरा पाँव किसी शाख में फंसा और मेरे मुंह से चीख निकली। एकदम से मेरे कानों में उसी औरत की आवाज़ आई, उठ जा लड़की, सुबह हो गई है। मैं हड़बड़ा कर झटके से बैठी। इर्द गिर्द देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी। मुझे उससे बेतहाशा खौफ आया। इसका मतलब कि वो सब एक भयानक ख्वाब था, मगर इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो ख्वाब ऐसे ही नहीं आया था। ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद था। ये मेरे अल्लाह की तरफ से कोई खुफिया इशारा था कि मैंने एक गलत औरत के पास पनाह ली थी। मैं उठी तो उसने कहा कि मैं ज़रा किसी काम से जा रही हूँ, तूने घर से बाहर नहीं निकलना, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार खुद होगी। मैंने डर के मारे कोई जवाब ही नहीं दिया। वो घर से बाहर निकली तो मैं कुछ देर बाद अपनी चादर अपने इर्द गिर्द अच्छे से ओढ़ती उठी और जंगलों की तरफ रवाना हो गई। मुझे अब समझ आ गई थी कि अहमद किसी मुसीबत में फंसा था और वो इस जंगल में ही कैद था। इसी वजह से तो मैंने उसको देखा नहीं था। मैं फूंक फूंक कर चलती जा रही थी ताकि उस औरत को पता नहीं चले कि मैं उसी का पीछा कर रही हूँ। मैं आयतुल कुर्सी का विर्द भी मुसलसल कर रही थी ताकि अपने रब की अमान में रहूं। वो जादूगरनी चलते हुए काफ़ी आगे निकल आए थे। फिर जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंची तो यहाँ पर अंधेरा देखकर मेरे चेहरे पर खौफ से पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। दिन के वक्त यहाँ पर अंधेरा होना बहुत ही पुरस्कार बात थी। फिर कुछ ही देर में मैं उस औरत को देख रही थी। उस औरत ने लकड़ियों पर आग लगाई तो सामने अहमद को उसी तरह ख्वाब की तरह बंधा हुआ देखकर मुझे अफसोस हुआ। वो ज़ख्मों से चूर चूर था, लेकिन ज़रा भी उस जादुई दायरे से बाहर नहीं निकल सकता था। उस औरत ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए तो बादल ज़ोर से गरजने लगे। आसमान पर बिजली कड़कने से मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ऐसी ठंडी हवाओं से मेरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ने लगी थी। उस जादूगरनी के मंत्र पढ़ने के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो ये कहकर वहाँ से गई कि अब पूरी रात तो यहाँ कैद रहेगा और अमाउस की रात गुजरते ही जलकर भस्म हो जाएगा। मैं उस औरत के जाने के बाद भागती हुई गई और अहमद से कहा कि तुम इधर कैसे फंस गए? उस जादूगरनी की तुमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो तुम्हें मारना चाहती है वो? उसने कहा कि मैं एक जिन ज़्यादा हूँ, ये मुझे मार कर मेरी ताकतें लेना चाहती है। कई बार ये मुझे रोक चुकी है, मगर अब आखिरकार मुझे इस जादुई हिसार में बंद कर दिया है। मैं अगर यहाँ से नहीं निकला तो ये मेरी ताकतें लेकर मज़ीद शेर बन जाएगी और दूसरे जिन्नात को भी नुकसान पहुँचाएगी। आपको भी इसने शैतान के आगे बलि चढ़ाने के लिए अपने मकान में रखा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा कि आप इस स्याह दायरे के ऊपर पानी डालें ताकि ये ख़त्म हो जाए और फिर सूरह जिन पढ़कर मेरे ऊपर फेंक दें। मैंने वैसा ही किया जैसे कि उसने कहा था। जैसे ही मैंने सूरह जिन पढ़ी तो वो जिन ज़ाद उस कैद से आज़ाद हो गया। उसने अपनी ताकतों से सबसे पहले उस जादूगरनी का खात्मा किया
اور پھر اس کے جتنے بھی موکل اس جنگل میں پھیل چکے تھے ان کو جلا ڈالا۔ وہ میرا بہت شکر گزار تھا کہ میں نے اس کی اتنی مدد کی اور اس کو بھوک کی حالت میں کھانا بھی دیا۔ اب مجھے اس جنذات سے ذرا بھی خوف نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بے قصور تھا۔ پھر جب اس جنذات نے کہا کہ کیا آپ میرے سے شادی کر کے ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہیں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، آپ کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں اس جنذات کی آنکھوں میں سچائی اور محبت دیکھ کر راضی ہو گئی۔ میرے پاس ویسے بھی اب کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت تو تھی ہی۔ اب اکیلے تو میں اس معاشرے میں نہیں جی سکتی تھی۔ یہاں تو ہر کوئی ہی اکیلی عورت پر غلیظ نظریں جمائے بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر شادی کر کے میں اس جنذات کے ساتھ اس کی دنیا میں آ گئی تھی، جہاں پر میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھی اور میں پرسکون ازدواجی زندگی جینے لگی۔